إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی جو آیت آپ کے روبرو پڑھی گئی، رب تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے مومنین بندوں کو خاص دو اہم باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ پہلی بات، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم زندگی کے اپنے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کی ہر موڑ پر اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور ہوشیار رہو، خبردار رہو، فکر مند رہو اور اس بات سے ڈرتے رہو کہ اپنے اعمال تم اپنے آپ ہی برباد نہ کرو۔ جن اسباب سے، جن وجوہات سے ہماری اور آپ کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ دنیا ہم کو نمازی کہے۔ ہم اور آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اگر مقصد یہ ہے کہ دنیا ہمیں سخی اور فیاض کہے۔ ہم اور آپ حج اور عمرے کرتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ دنیا ہمیں حاجی اور عمری کہے۔ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ دنیا ہم کو روزے دار کہے۔ ہم اور آپ عاجزی سے، انکساری سے پیش آتے ہیں، بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ دنیا ہم کو بہترین اخلاق اور کردار کا حامل جانے۔ یہی ریاکاری ہے، یہی دکھاوا ہے اور یہی شہرت ہے۔ جبکہ عبادت اور جبکہ نیکی، شریعت نے ہمیں ان چیزوں میں حکم دیا ہے کہ اخلاص ہو، للہیت ہو۔ ہم جو بھی نیکی کریں، ہم جو بھی عبادت کریں، دنیا خوش ہو نہ خوش ہو، مقصد ہمارا یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے اور خوش ہو کر اپنی بنائی ہوئی جنت میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں داخل کر اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں جہنم سے نجات دے۔ بس یہی مقصد ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے، وہ نیکیاں کرے، اچھے اعمال کرے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہاں شریک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر عمل اخلاص پر مبنی ہو، اس کی ہر نیکی للہیت پر مبنی ہو، یعنی دنیا خوش ہو نہ خوش ہو، اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جو بھی شخص کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی عبادت کرے، کوئی بھی نیکی کرے، اگر وہ اس میں کسی کو شریک کرتا ہے
यानी उसका मकसद यह है अल्लाह खुश हो न हो, दुनिया खुश हो जाए, रिश्तेदार खुश हो जाए, दोस्त अहबाब खुश हो जाए और लोग खुश हो जाए और हमें मुत्तकी परहेजगार कहे। अगर ये उस शिर्क और ये मिलावट उसके अंदर मौजूद है तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तरक्तु हो व शिर्क हो, अल्लाह उसकी नेकियों को और इबादतों को भी बर्बाद करेगा और कयामत के दिन अल्लाह उसे खुद बर्बाद कर देगा। उस जात को, उस शख्स को जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादतों और नेकियों में वो रियाकारी का जज्बा रखा है जो नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप देखें शैतान जो हमारा और आपका अजली दुश्मन है और हमारी और आपकी जिससे जंग और लड़ाई इब्तिदाए कायनात से जारी है और कयामत तक जारी रहेगी, वो शैतान नफ्सियात का बहुत बड़ा माहिर है। हमारे और आपके अंदर वो कौन सी कमजोरियां हैं जिससे वो हमें और आपको गुमराह कर सकता है, हमसे ज्यादा हमारा शैतान जानता है, वो जानता है। इसलिए तरह तरह से हमले करके हमले के वो मंसूबे बनाता है। पहला हमला करता है कि मुसलमान को, मोमिन को, इंसान को कोई अच्छा अमल ही ना करने दे, वो मस्जिद ना जाने दे, वो नमाज ना पढ़ने दे, वो कुरान ना पढ़ने दे, वो सदका ना करने दे। ऐसा होता है बहुत दफा। इंसान सोचता है गरीब की मदद करे, इतने में वो मुकर जाता है। इंसान वादे करता है नमाज पढ़ेंगे, इतने में वो मुकर जाता है। इंसान वादा करता है हम रोजा रखेंगे, इंसान मुकर जाता है। ये शैतानी हमला है जो सबसे पहला हमला होता है कि वो इंसान को अमल करने से ही रोक देता है। और अगर वो इस हमले में नाकाम हो जाता है, इस जंग में अगर हम और आप जीत जाते हैं और इबादतों और नेकियों की तरफ हमारे कदम बढ़ने लगते हैं और वो जब नाकाम अपने आप को समझ लेता है और शिकस्त खा जाता है, हार जाता है, तो शैतान का जो दूसरा हमला होता है वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो उससे भी बड़ा हमला करता है और वो हमला जब इंसान इबादत करता है, इंसान नेकी करता है, इंसान अमल करता है, तो वो शैतान उसकी नीयतों में खोट डाल देता है, उसकी नीयतों में फसाद डाल देता है, उसकी नीयतों में रियाकारी का जज्बा पैदा कर देता है। और जब रियाकार इंसान हो जाता तो सुबह हो कि शाम हो, दिन हो कि रात हो, उसको सिर्फ शोहरत की भूख होती। वो इस भूख में रहता कि कितना मैं मशहूर हो जाऊं, कितना मैं शोहरत याफ्ता हो जाऊं, कितना मैं नामवर हो जाऊं, कितने जबानों पर हमारे नाम आने लगे और कितने लोगों की जबानों पर हमारी इबादतों और नेकियों के चर्चे होने लगे। फिर वो इस तरह भूखा होता है कि जो अमल करता है, जो नेकियां करता है, उस पर लोग उसकी तारीफ करें, उससे तो खुश होता है, लेकिन वो इससे भी खुश होता है कि जो कोई सिफत और खूबी और नेकी उसके अंदर नहीं है, उसके बावजूद लोग उन नेकियों को उसके हवाले करके उसकी तारीफ करते हैं, तो वो और ज्यादा खुश होता है। कैसे? मिसाल देखिए, एक बखील आदमी, कंजूस आदमी, जिंदगी में 1 रुपया नहीं खर्चा करने वाला, हम और आप उससे कहें तुम बड़े सखी हो, तुम बड़े फयाज हो, तुम बड़े नवाजने वाले हो, तुम बड़े अता करने वाले हो, तुम गरीबों के रखवाले हो, हम ऐसा कहते जा रहे हैं और वो खुश होता जा रहा है, हालांकि उसके अंदर वो लेकिन नहीं, वो बखील है, वो खुश होता जा रहा है, वो रियाकार है। इसी तरह इंसान को देखो, बेनमाजी है, न कुरान पढ़ता है, न नमाज पढ़ता है, न सजदे करता है, लेकिन हम उससे कहते हैं अरे आप तो बड़े दीनदार हो, आप तो बड़े अच्छे मुसलमान हो, और वो उस पर खुश होता जाता है। अल्लाह ने कहा वो युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफअलू, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो नेकियां नहीं करते हैं, लेकिन उन नेकियों के हवाले से अगर उसकी तारीफ की जाए तो वो खुश होते हैं, वो राजी होते हैं और वो हंसते और मुस्कुराते हैं। ऐसे लोगों को खौफ खाना चाहिए और डरना चाहिए हमें और आपको अपनी इबादतों और नेकियों में। इसी तरह रियाकारी, दिखावा, शोहरत, ये निफाक की इलामत है। मुनाफिक दुनिया का सबसे बड़ा रियाकार होता है, सबसे बड़ा दिखाने वाला होता है। अल्लाह ने फरमाया वइदा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास, ये मुनाफिक जो है नमाज पढ़ने मस्जिद नबवी में आते हैं, लेकिन इनके दिल में कुफ्र छुपा हुआ है। ये लोगों को दिखा रहे हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, वला यज़कुरुल्लाह इल्ला कलीला, हालांकि इनकी सिफत यह है कि अल्लाह को ये नमाजों में बहुत कम याद करते हैं। युराऊन अन्नास, यानी ये लोगों को दिखा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी जगह फरमाया सूरतुल माऊन के अंदर अल्लज़ीना फी सलातिहिम साऊन वल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन, ये लोग जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं और दिखावे और शोहरत के लिए कर रहे हैं। देखो एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी इंसान रियाकारी से पाक और साफ नहीं है, ये फितरतन है, और इससे पाक और साफ सिवाय सिर्फ अंबिया और रसूल, रसूलों के पास, नबियों के पास
रियाकारी का जज्बा नहीं होता और उनके पास दिखावा नहीं होता, लेकिन हर इंसान के पास रियाकारी का जज्बा मौजूद होता है। इसलिए हमेशा हमें और आपको अपनी नमाजों में, अपनी नेकियों में और अपनी इबादतों में जब भी रियाकारी का जज्बा आए, शरीयत ने तालीम दी, नमाज पढ़ रहे हो रियाकारी का जज्बा आ रहा है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो। सदका कर रहे हो, दिखावे का जज्बा पनप रहा है, फौरन अस्तगफिरुल्लाह कह दो। इसलिए कि इस नफ्स को, जिसके अंदर शैतान वसवसे डालता है, जिसके अंदर शैतान अपनी गुमराहियों का जरिया और वसीला ढूंढता है, इस नफ्स को काबू में करना, इस नफ्स को कुचलना, इस नफ्स को मसलना और इस नफ्स को संभालना, ये बहुत बड़ा काम है और बहुत मुश्किल काम है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इस नफ्स की तरबियत में हमको 40 साल लग गए। कितने? 40 साल। ये नफ्स की तरबियत में हमने 40 साल गंवा दिए, तब जाकर यकीन हुआ कि हाँ, हमारे नफ्स में और हमारे दिल में अब सिर्फ और सिर्फ ईमान की रोशनी जल रही है। वरना आप जरा अंदाजा करो, हम और आप कोई भी नेकी करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, ये नफ्स है जो हमें रोक रहा होता है और नफ्स के ऊपर शैतान गालिब आता है। इस नफ्स की तरबियत करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो नफ्स को, ख्वाहिशात को, चाहत को और अपनी मोहब्बतों को अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुचल डाले, उसी के लिए तो जन्नत, उसी के लिए तो जन्नत है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, महमूद इब्न लबीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अखवफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल अस्गर। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारे हवाले से जिस बात को लेकर मैं सबसे ज्यादा डर रहा हूं वो शिर्क असगर है, छोटा शिर्क है। सहाबे कराम ने कहा, अल्लाह के नबी, शिर्क अकबर तो हमें मालूम है, अल्लाह ही इबादत के लायक है, उसके सिवा किसी और की इबादत और बंदगी की जाए ये शिर्क अकबर है। अल्लाह मुश्किल कुशा है, उसके अलावा किसी और को मुश्किल कुशा जाना जाए ये शिर्क अकबर है। अल्लाह ही दस्तगीर है, उसके अलावा दुनिया में किसी और को दस्तगीर माना जाए ये शिर्क अकबर है। अल्लाह गंज बख्श है और दुनिया में किसी और को उसके अलावा गंज बख्श माना जाए ये शिर्क अकबर है। अल्लाह औलाद देने वाला है, औलाद देने वाला किसी और को समझा जाए ये शिर्क अकबर है। अल्लाह रोजियों का मालिक है और रोजियां देने वाला है, रोजियों का मालिक और रोजियां देने वाला किसी और को मान लिया जाए ये शिर्क अकबर है। अल्लाह के नबी, शिर्क अकबर के बारे में आपने तो हमें खुलकर बताया है और हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये शिर्क असगर क्या है, ये छोटा शिर्क क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रिया, रियाकारी है, दिखावा है, जो उससे भी बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि ये दज्जाल से भी बड़ा फितना है, और दज्जाल का फितना इतना अजीम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो छोड़ो, दुनिया में जितने अंबिया आए, जितने पैगंबर और रसूल आए, सारे लोगों ने अपनी अपनी उम्मत को फितने दज्जाल से बचने की ताकीद की है। और खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हो, तशहुद की हालत में वो दुआ और पनाह मांगने की ताकीद फरमाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, खुरूज दज्जाल से फितने के पनाह मांगने की अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई। जरा सोचो, ये दज्जाल फितना कब होगा? जब खुरूज होगा, और ये कयामत के करीब खुरूज होगा इसका, और ये फितना उन लोगों के लिए होगा जो कयामत के करीब लोग होंगे। लेकिन रियाकारी का फितना हर दौर के लिए, हर जमाने के लिए, हर महीने के लिए, हर साल के लिए और हर दिन के लिए फितना, ये इतना बड़ा फितना है मेरे भाइयों दोस्तों, रियाकारी। आप देखें, आदमी नमाज पढ़ रहा है, हम और आप पढ़ते हैं, नमाज पढ़ रहा है, कोई बगल में देख रहा, नमाज थोड़ा लंबी कर दे ताकि ये समझ जाए कि हम सच्चे नमाजी है ना। दुआ मांग रहे, दुआ हम और लंबी कर दे, बगल वाला देखे कहे हाँ वाकई ये अल्लाह का मुखलिस है, ये तकवा गुजार। ये सब नहीं, लेकिन शैतान कभी कभी हमारे नफ्स पर गालिब आता है और ऐसे वसवसे पैदा होते हैं और इंसान करता है ऐसे काम करता, जबकि तन्हाई में उसकी नमाजें उतनी लंबी नहीं होती, तन्हाई में उसकी दुआएं उतनी लंबी नहीं होती। लेकिन आज वो मस्जिदों में बैठकर वो जज्बात रियाकारी के शैतान उसके अंदर पैदा कर रहा है, यहां तक कि हमारी नेकियों को, हमारी इबादतों को गुनाह बना देता है और अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना देता है। आप वो मशहूर हदीस सुनते हैं बारह कि जहन्नम की आग सबसे पहले 3 लोगों से भड़काई जाएगी, बारह सुनते हैं। दोज़ख की आग सबसे पहले 3 लोगों से भड़काई जाएगी। सबसे पहले एक आलिम को, एक हाफिज को अल्लाह बुलाएगा और उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा
हमने तुम्हें जहन दिया, दिमाग दिया, हाफिजा दिया, कुरान याद किए, नमाज पढ़े, कुरान याद किए, नमाज पढ़ा, सब कुछ नेमतों का वो इकरार करेगा, हाँ अल्लाह ये तो नेमतें तूने दी, एतराफ करेगा। फिर कहा बताओ मेरी इस दी हुई नेमत का तुमने लोगों को कितना फायदा पहुंचाया, या तुमने इस नेमत का क्या किया? वो कहेगा मैंने नमाज पढ़ाई, दीन सिखाया, इल्म सिखाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन कज़ब्ता, मशहूर हदीस है इसलिए मुख्तसर कर रहा हूं, कज़ब्ता, झूठ बोल रहा है। आलिम हुआ, हाफिज हुआ, दीन का काम किया, नमाज पढ़ाया, कुरान पढ़ाया, सब पढ़ाया, लेकिन वो अल्लाह क्या जो दिलों के राज को जानता है, दिलों के भेद को जानता है, तेरे दिल में जो मकसद था, दुनिया की शोहरत थी, दुनिया के अंदर रियाकारी का जज्बा था, तू चाह रहा था कि दुनिया में मुझको सबसे बड़ा आलिम कहे, कारी कहे, हाफिज कहे, तुझे दुनिया में जो चाहना था वो तुझे मिल चुका है। आज आखिरत के अंदर तेरे लिए कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि ये तूने दूसरों को खुश करने के लिए किया था, मुझको नहीं। देख रहे हैं, एक आलिम है, हाफिज, और सबसे पहले दूसरा जो शख्स है जिससे जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, सबसे बड़ा अमीर आदमी, दौलतमंद आदमी, अल्लाह उसको भी अपने नेमतों को याद दिलाएगा। तो ये था, वो था, हमने इतना नवाजा, इतना नवाजा, क्या किया तुमने? कहेगा अल्लाह हमने गरीबों में बांटा, यतीमों को बांटा, और मदरसों में दिया, मस्जिदों में दिया, न जाने कहां कहां खैरात किए। अल्लाह जो सीनों के राज को जानता है वो कहेगा कज़ब, झूठ बोलता, दिया तो था तूने, सबका खैरात सब कुछ दिया, लेकिन तेरा मकसद रज़ाए इलाही नहीं था, तेरा मकसद नहीं था तेरा रब तुझसे राजी हो जाए, तेरा मकसद था दुनिया में तेरी अमीरी का चर्चा हो, तेरा मकसद था दुनिया में तुझे सखी और फैयाज कहा जाए, तेरा मकसद था दुनिया में दो लोगों की जबान पर तेरी तारीफ के अल्फाज निकले और जुमले निकले, वो सब तुझे मिल गया जो तू चाह रहा था। आज क़यामत के दिन जहां तेरा कोई हिस्सा नहीं। तीसरा आदमी है वो जो जंग में जाके शहीद हो जाता, शहादत का मकाम, अल्लाह के इस्लाम के, अल्लाह के दीन के, नबी के कलमे की बुलंदी के लिए जंग के मैदान में काफिरों से अपनी गर्दन कटवा लिया, शहीद हो गया, उसके खून बह गए अल्लाह के राह में। अल्लाह कहेगा कि मैंने तुझे ताकत दी, शुजाअत दी, दिलेरी दी, क्या किया? कहेगा शहीद हो गया तेरे रास्ते, कुर्बान कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दिया। अल्लाह फरमाएगा कज़ब, तू झूठ बोलता, तेरा मकसद यह था कि तेरी शहादत के बाद तेरी शुजाअत और दिलेरी की दुनिया में चर्चे हो और तुझे शहादत के नाम से याद किया जाए, तुझे दुनिया में जो तेरा मकसद था वो मिल गया। क़यामत के दिन आज तेरा कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीनों को घसीट के जहन्नम में डाल दिया। देख रहे हो, ये तीनों अगर कोई अमल न किए होते तो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आती। एक आलिम और एक हाफिज, अगर आलिम ना हुआ होता, हाफिज ना हुआ होता तो इतनी बड़ी मुसीबत उस पर नहीं आती। एक अमीर अगर 1 रुपया भी खर्चा ना किया होता तो इतनी बड़ी मुसीबत उस पर नहीं आती। एक शहीद आदमी जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया, अगर वो शहीद ना हुआ होता तो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आती जितनी बड़ी मुसीबत रियाकारी की वजह से इन तीनों पर आ गई, दिखावे की वजह से। जहां अल्लाह की रजा मकसूद नहीं और दुनिया वालों की रजा मकसूद हो तो वो इबादतें और वो नेकियां भी हमारे लिए अजाब बन जाती हैं। आप जानते हैं ये दिखावा और रियाकारी अल्लाह ने एक मिसाल से समझाया, एक मिसाल से समझा कितना बड़ा खसारा है इसमें, कितना बड़ा नुकसान है इसमें और कितना बड़ा घाटा है इसमें, और कैसे ये हमारे नेकियां और हमारी इबादतें बर्बाद करती है। ये शोहरत, ये दिखावा, ये नमोदारी। आप जानते हैं अल्लाह ने मिसाल दी कि एक बाग हो और वो बाग बहुत खूबसूरत है, उसमें खजूरों के दरख्त हैं, उसमें अनार के दरख्त हैं, उसमें अंगूर के दरख्त हैं, उसमें सेब के दरख्त हैं, लेकिन मसला क्या है कि बागीचे का जो मालिक है वो बहुत कमजोर और बहुत बूढ़ा हो चुका है, बहुत बूढ़ा हो चुका, और उसके मातहत सरपरस्ती में मासूम बच्चे हैं, मासूम बच्चे। गौर से सुनिएगा, वो बूढ़ा न खुद कमाने के काबिल है और न वो मासूम बच्चे जो उसकी सरपरस्ती में है, न वो मासूम बच्चे इस लायक हुए हैं कि वो अपने कदम पे खड़े होकर रोजी रोटी कमाए। नहीं, उस बूढ़े इंसान की पूरी उम्मीद उसी बागीचे पर है। चलो हम नहीं रहेंगे तो कम से कम इस बागीचे से इनकी रोजी रोटी चले। पूछो उन बाप से, पूछो उस बाप से। आज भी हमारे समाज में जो बाप बूढ़ा है और उसके बच्चे अपने कदम पर खड़े नहीं हुए हैं और वो भी मासूम है, छोटे हैं, अभी वो न तिजारत में लगे हैं, न कारोबार में लगे, न शादियां हुई हैं, जब वो बूढ़ा आखिरी सांस तोड़ रहा होता, कितना बड़ा सदमा लेके वो इस दुनिया से जाता है कि मेरे बाप न जाने कि मेरे बच्चों का क्या हो।
बच्चे बाप के सिलसिले में सोचे न सोचे, बाप मरते वक्त भी अपनी औलाद की फिक्र करता है। वल्लाह कसम, ये कुरान कहता है। एक बूढ़ा बाप जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लिए जाता है कि मेरे बच्चे अभी किसी काबिल नहीं हुए हैं, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, कहां रहेंगे, कैसे खाएंगे। ये बूढ़ा बाप सदमे लिए जाता। अल्लाह कहता है एहसास करो, एहसास करो कि वो बूढ़ा आदमी बागीचे का मालिक अपने मासूम बच्चों को देखता है और उस बागीचे को देखता है। थोड़ी उम्मीद बढ़ती है, मैं नहीं रहा, आंखें बंद हो गई, तो यह बागीचा इन बच्चों के लिए काफी होगा, रोजी रोटी इसके जरिए इनकी चलेगी। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है रात में आंधी आई, गर्म हवा चली और वो हवा अपने साथ आग लेकर आई और आग ने बागीचे को जला के खाकिस्तर कर दिया, राख कर दिया। जरा सोचो उस बूढ़े को कितना सदमा हुआ होगा, उस बूढ़े को कितनी तकलीफ हुई होगी कि मेरे जिंदा रहते ही जिस बागीचे पर मेरी पूरी उम्मीद थी, मेरी आंखों के सामने वो बागीचा जलकर राख हो गया, अब क्या होगा। ये कितना बड़ा सदमा है। अल्लाह कहता है कयामत के दिन आओगे, आओगे मेरे पास और आना ही है। ये सबका अकीदा, तुम्हारे रजिस्टर में नेकियां और इबादतें भरी होंगी, इतने में रियाकारी और दिखावे की आग आएगी और तुम्हारी सारी नेकियों को जलाकर खाकिस्तर कर देगी। कितना बड़ा सदमा होगा तुम। हश्र की अदालत में तुम्हारी नेकियां जल चुकी हैं, तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो चुकी हैं इसी रियाकारी की बुनियाद पर। जैसे उस बूढ़े को इस दुनिया में सदमा पहुंचा है, ऐसे ही तुम्हें कयामत के दिन नेकियों के जल जाने पर सदमा पहुंचेगा। इसलिए होशियार रहो और नेकियों से अपने आप को दूर रखो। हमारे असलाफ जानते हैं रियाकारी से कितना बचते थे। सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबी रसूल, मजलिस लगी हुई है, मजलिस लगी हुई है, कई लोग बैठे हुए। उन्होंने पूछा बताओ आज रात में सितारा टूटते हुए किसने देखा है। गौर से सुनना, आज रात को सितारा टूटते हुए, तारा टूटते हुए किसने देखा है आसमान से। हसन बसरी, हसन इब्न अब्दुल रहमान थे, उन्होंने फौरन कहा मैंने देखा, मैंने देखा। अब जब ये जबान निकल गई मैंने देखा, तो अब देखो उनके दिल में क्या एहसास हो। अब तो मैंने कह दिया मैंने देखा, कहीं ऐसा ना हो कि सुनने वाले ये समझ बैठे कि मैं रात में तहज्जुद पढ़ रहा था, कुरान पढ़ रहा था, जाग रहा था, अल्लाह से दुआएं कर रहा था। ये लोग ना समझ जाएं और इसी को लेकर मेरी तारीफ करें समाज में कि देखो हसन बिन अब्दुल रहमान रातों को तहज्जुद पढ़ता है। रियाकारी से बचने के लिए हसन इब्न अब्दुल रहमान कहते मैंने फौरन कह दिया, फौरन कह दिया। लोगों ये ना समझना कि मैं रात में तहज्जुद पढ़ रहा था, ये ना समझना कि मैं रात में कुरान पढ़ रहा था, बल्कि बिच्छू ने मुझे डंक मारा था जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। रियाकारी का बचना है, उससे अपने आप को बचाना है। अली इब्न हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ये अहले बैत में से, नबी के खानदान में से मशहूर, जानते हैं आप 40 गरीब घरानों को राशन दिया करते थे महाना, महाना 40 गरीब घरानों को। किसी गरीब घर को ये नहीं मालूम कि राशन कहां से आ रहा है, कौन ला रहा। कब जानते हैं? रात की तारीकी में पहुंचा देते सबके दरवाजे पर और सब सुबह होते दरवाजे के अंदर ले लेते। लेने वाले को भी पता नहीं कौन ला के राशन दे रहा। कब मालूम हुआ आपको मालूम, कब पता चला उन 40 घरानों को गरीब, जब अली इब्न हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की मौत हो गई, इंतकाल हो गया और आने वाले महीने में उनके घरों में राशन नहीं पहुंचा। तब उन्हें पता चला ये कोई और नहीं बल्कि अली इब्न हुसैन थे जो हमारे घरों को राशन पहुंचाया कर रहे थे। रियाकारी से दूर रहना, रियाकारी से अपने आप को बचाना। कैसे बचाना है वो हमारे और आपके लिए इस्लाम ने बहुत सारे तरीके बताए। हाँ अलबत्ता एक चीज और याद रखो कि दिखावा, रियाकारी, जज्बा कब होता है? जब ये सारे मामले कहीं कहीं पर दिखाना भी जरूरी हो जाता है। जब कोई ऐसी नेकी और ऐसी सुन्नत जो समाज से गायब हो रही है, कोई उस पर अमल करता हुआ नहीं दिख रहा, तो अब आपको वो नेकी और वो सुन्नत अदा करनी है, अदा करनी है। और अगर वो आप दिखा के कर रहे हैं ताकि दूसरों के अंदर उस नेकी का शौक हो, उस नेकी का जज्बा हो, शरीयत ने जायज करार दिया इस हाल में कि आपकी नीयत साफ हो, आपका दिल साफ हो और आपके अंदर रियाकारी का जज्बा ना हो। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ने के बाद अगर कोई शख्स अपनी जगह बैठे रहे, दुआ अस्कार करे और सूरज निकलने के बाद इशराक की नमाज पढ़े, हज और उम्रे का सवाब मिलता है।
مثال کے طور پر کوئی ایسی بستی ہے, کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں یہ سنت بالکل ختم ہے, نہیں کوئی پڑھ رہا, اب آپ یا ہم آگے بڑھتے ہیں اور اتنی دیر ہم بیٹھ کر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, اب دنیا دیکھے کہا کرے ایک جگہ اپنی, ہماری نیت صاف, ہم سنت کو زندہ کر دیتے. ایسے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر جہاں صدقہ چھپا کر دینے کی فضیلت دی گئی ہے, وہیں صدقہ کبھی کہیں ظاہر کر کے بھی دیا جاتا ہے. ظاہر اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ دوسروں کے لیے نمونہ بن, آپ دوسروں کے لیے آئیڈیل بننا چاہیں. 100 روپیہ کوئی لا رہا ہے, آپ بیچ میں لا کے 500 روپیہ دے دیے, اعلان ہونے پر, انفرادی نہیں, اجتماعی. اگر اعلان ہوا چلتے کا کسی غریب کے لیے, کسی مدرسے کے لیے, کسی مسجد کے لیے, اب آپ دیکھ رہے ہو کہ سب 100 200 دے رہے ہیں, اب اسی بیچ آپ کھڑے ہو گئے بھیا ہمارا 5000 لے لیں, اس سے ریاکاری نہیں, یہ آپ نمونہ پڑھ رہے ہیں پیچھے والوں کے لیے. اب اس کے بعد جو مدد کرے گا, تعاون کرے گا, وہ اپنے تعاون میں رقم زیادہ کر کے دے گا, اس کے پاس غیرت آئے گی, وہ اور دے گا. تو ایسی جگہوں پر آپ دکھا کے بھی کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں اگر ایسا آپ کر رہے ہیں تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نیکی کرنا چاہتا ہوں, کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میرے سوا کوئی نہ جانے, پر دنیا جان جاتی ہے. ہوتا ہے ایسا, ہم اچھا عمل کر رہے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کسی کو معلوم ہو, لیکن آٹومیٹک معلوم ہو جاتا ہے. کیسے معلوم ہوتا ہے نہ جانے. تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں کیا کروں, تب تو میری نیکی برباد, جو ساری دنیا ہی کہہ رہے دیکھو فلاں یہ کر رہے, فلاں یہ کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل صاف ہے نا, تمہارا دل پاک ہے ریاکاری سے. یہ جو لوگ تعریف کر رہے ہیں نا, کل قیامت کے دن تمہارے حق میں بہتری ثابت ہونے والی, ان کی گواہیاں ہوں گی تمہارے حق میں. تو میرے بھائی دوستوں ایسے بہت سارے حالات ہیں, حالات کے پیش نظر, لیکن ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو ریاکاری کے جذبے سے بچائیں. لہذا میرے بھائی دوستوں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے, گرمیوں کا موسم ہے, اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین گرمیوں سے نجات دے انسانوں کو, آسمانوں سے بارشوں کو نازل فرمائے اور ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے. اور اسی طرح اللہ رب العزت پوری دنیا میں جتنے مسلمان, چاہے ہمارے اپنے ملک میں ہو چاہے کسی اور ملک میں ہو, اگر وہ مظلوم ہیں, ستائے جا رہے ہیں, اللہ کسی نہ کسی راستے سے تو ان کی مدد فرمائے. جتنے مسلمان بیمار ہیں وہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور جتنے بے روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرمائے, آمین. خطبے کے آخر میں 2 ضروری اعلان ہے, بس مختصر. اسلام کمپاؤنڈ میں رائل میڈیکل کے سامنے ابھی بھی ایک دواخانہ کھل رہا ہے, علی گڑھ دواخانہ. انہوں نے 2 بجے سے 6 بجے تک شوگر فری اور بی پی فری, یہ سب چیک اپ کو فری کیا ہے, دوائیاں بھی فری کی ہیں, لیڈیز ڈاکٹر بھی ہیں اور جینٹس ڈاکٹر بھی ہیں. آپ حضرات اگر اپنی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو وہاں جائیں اور آپ اپنا فائدہ اٹھائیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں سے دعا, برکت کی دعا کر کے رخصت ہوں. یہ سامنے ہی ہے, یہ پہلا اعلان تھا. اللہ ان کی دکان میں اور ان کی جو ہے کمائی میں برکت عطا فرمائے اور سب کا خیرات کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. دوسرا اعلان, خود ہمارے والد محترم جن کی بڑی محنتوں سے, کاوشوں سے اللہ نے مجھے اپنے فضل سے اس مقام تک پہنچایا کہ دین اسلام کی تھوڑی بہت باتیں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. ان کی طبیعت اس وقت بہت زیادہ خراب چل رہی ہے, ناساز ہے. آپ تمام حضرات سے دعائے شفا کی درخواست ہے, اللہ سب کو شفا عطا ہے. ان کے ساتھ میں دنیا میں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.